Hello students, in the previous video I told you about equality in Indian democracy, and I told you also about Dr. V.R. Ambedkar. He was the father of Indian constitution and how he struggled for the democratic system in our country. Now, today we will continue issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issues of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equally through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. Students, we are reading about the issues of equality in other democratic countries in all over the world. You know, हम जैसा सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं जहाँ पर कि असमानता है और जहाँ लोगों ने समानता के लिए लगातार संघर्ष किया है जो कि अब एग्जिस्ट भी करती है। ये भी सत्य है कि बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं पूरे विश्व में जहाँ आज भी समानता का एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार जिसके लिए संघर्ष किया गया है। ऐसा ही एक उदाहरण हम लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा आप जानते हैं आज पूरे विश्व का एक सबसे पावरफुल कंट्री, वो भी इससे अछूता नहीं है। वहाँ जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं जो जिनके एंसेस्टर्स कभी स्लेव हुआ करते थे और जो अफ्रीका से आए थे, तो उनके साथ लगातार जो है आज भी असमानता का व्यवहार होता है। इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन 1950 के दशक में चलाया जिससे कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को जो है समान रूप से अधिकार मिले। तो अफ्रीकन जो अमेरिकन्स थे उनके साथ बहुत ही जो है असमान रूप से उनको ट्रीट किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में, और उन्हें जो है कानूनों के माध्यम से ही उन्हें समानता से भी वंचित रखा गया। उदाहरण के लिए जब भी कोई व्यक्ति बस में ट्रैवल करता है तो और वो बस में अगर पीछे बैठा है और कोई वाइट पर्सन आता है तो उस ब्लैक को जो है अपने आप वो अपनी सीट छोड़ देता था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं थीं तो वहाँ ब्लैक और वाइट में जो कम्युनिटीज़ थी उनको लेकर के एक भेदभाव था। रोजा पार्क्स and she was born in 1913 and she was died in 2005, was a African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st of December 1955. Her refusal that they started a huge hesitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement. Students, ऐसी एक कहानी है रोज़ा पार्क्स की जिसका जन्म 1913 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2005 में हुई, और एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो काफ़ी सुबह से लेकर शाम तक वो कार्य करती थी। तो कार्य करने के बाद जो है वो काफ़ी थकी हुई थी तो उन्होंने अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था एक वाइट जो व्यक्ति था। ये घटना है 1 दिसंबर 1955 की। तो उसका जो इनकार था उसी दिन जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज एजिटेशन जो है उसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। अनइक्वल वेज को लेकर के जो समान रूप से जो तरीके अपनाए जा रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ, उसको लेकर के जिनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, तो उसको सिविल राइट्स मूवमेंट्स के नाम से जाना गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इट ऑल्सो stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country.
Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. And you are seeing the figure of Rosa Parks, and she was an American African woman, and she is the course of American history with one defiant act, and it was also called the civil rights movement, and it was started in 1964. and this act, the civil right act of 1964 के अंतर्गत जो है, जो भेदभाव हो रहा था, चाहे वो कलर के आधार पर था या धर्म के आधार पर या नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर, उसको प्रतिबंधित किया गया। और उसमें जो है, जो भी स्कूल्स थे उनको, सभी स्कूल्स को जो है अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया, जो काफ़ी लंबे समय से जो है अलग अलग स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई करते थे। यानी कि ब्लैक के लिए अलग स्कूल्स होते थे, वाइट बच्चों के लिए अलग स्कूल्स होते थे। और इसलिए एक जो मेजॉरिटी थी अफ्रीकन अमेरिकन्स की, वो लगातार जो है देश के अंदर एक गरीबी से भी गुजर रही थी। तो बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, केवल गवर्नमेंट स्कूल्स को ही अफोर्ड कर सकते थे, अब वो जो है उनको कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई जो ज़्यादा पुअरली जो क्वालिफाइड टीचर्स उनको दिए जाते थे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वाइट स्टूडेंट्स, और उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में जो है अलाउ नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र थे जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वहाँ जो है हाईली रेटेड जो है प्राइवेट स्कूल्स जो है वहाँ पर उपलब्ध थे। नाउ वी विल रीड चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौती होती है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how the issues of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. आज के समय में लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतीज होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक हो, यानी संपूर्ण रूप से वो लोकतांत्रिक हो। ऐसे भी सदैव जो है कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होते हैं जो कि अपना ट्राई करते हैं कि उनके आइडियाज़ को एक्सपेंड किया जाए डेमोक्रेसी के अंदर, और उनका कहीं ना कहीं ग्रेटर जो है एक ज़्यादा रिकॉग्निशन होता है समानता के रूप में। और कुछ ऐसे नए इश्यूज़ भी एग्जिस्ट करते हैं, जो नए मुद्दे होते हैं, उसके मध्य में अगर हम देखें तो जो स्ट्रगल, जो संघर्ष होता है, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल राइट्स के लिए जो भी संघर्ष होता है, वो उनकी डिग्निटीज़ को मेंटेन करता है, कैसे उनका जो है सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो बना रहे। तो इस किताब में आप जो है पढ़ेंगे कि कैसे जो है जो इक्वलिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो अलग अलग प्रकार से हमारे दैनिक जीवन को एक लोकतांत्रिक भारत में प्रभावित करते हैं। जैसा आप पढ़ चुके हैं इन चैप्टर्स में कि जो इक्वलिटी होती है वो सभी व्यक्तियों के लिए जो है वो आवश्यक है, और जिससे कि उनकी डिग्निटीज़ जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पर आपका ये रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। जैसे हमने रोजा पार्क्स की कहानी पढ़ी, और उनके कारण ही जो है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक कानून बना जिसे हम सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। उसके माध्यम से वहाँ ब्लैक कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, जो काफ़ी पिछड़े हुए थे और जिनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था, उन सबको जो है अपने अधिकार प्राप्त हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।